We have started this line integral. थिंक ये स्टार्ट किया था हमने. ओके, सो लेट मी रिवाइज दिस क्विकली. फॉर प्रॉब्लम्स तक हमने कंप्लीट किया था. ओके, सो इफ एफ बार इज एनी वेक्टर, सो नाउ दिस इज फर्स्ट टॉपिक. सो टोटल देयर आर 4 टॉपिक्स हियर. यू कैन सी नाउ line integral, Green's, Stokes theorem and Gauss divergence theorem. Okay, that is the unit number 5. So the first topic is line integral, which is defined as integral over C. C is a closed curve. F bar dot dr bar. This is just the dot product, है ना. And what is the value of F bar dot dr bar is F1 dx, है ना, F2 dy like that, F2 dy and F3 dz. This is the value of F bar dot dr bar. But while solving the single integral, our target is what? We have to convert this expression f1 dx, f2 dy, f3 dz. We have to convert this expression into a single variable. Okay, एक तो x में convert होगा, या एक तो y में convert होगा, या तो एक तो z में convert होगा. And to do that, there are different results. Okay, so that we'll see in next slide. And before that, another remark is what? If f bar become a force field, है ना, in that case that integral gives you work done, क्योंकि आपको डायरेक्ट वर्क डन कैलकुलेट करने के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, सो ओके, सो एंड नाउ these are some results. Okay, so let me start one by one. If equation of curve is known, then use. तो ये सारे रिजल्ट किस लिए हमें यूज करने? टू कन्वर्ट इनटू अ सिंगल वेरिएबल. क्योंकि आपको मैंने पहले बोला कि यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल के अंदर ओके देर आर टोटल 3 वेरिएबल. dx का भी पार्ट आने वाला है, dy का भी पार्ट आने वाला है, dz का भी पार्ट आने वाला है. बट एज वी हैव ओनली सिंगल इंटीग्रल, तो आपको तीनों में से बस कोई एक पार्ट का ही कैलकुलेशन कंसिडर करना है, या तीनों वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करो. दैट इज इन टर्म्स ऑफ t. That is our target, because at the end we want only a single variable to solve that single integral. So to do that, there are some remarks. So first is what? If equation of curve is known, then use it as a substitution. अगर equation of curve given है, उसको ही substitution लेकर आपको solve करना है. Next is what? Okay, if you have the path, है ना, which join this 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2. अगर आपको बस इतने इन्फॉर्मेशन है कि there is one straight line, your path is what? A straight line which joining the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2. But we don't have that equation. Then in that case you have to find equation of that straight line using this result, है ना. तो कभी-कभी बस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे, आपको उस लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है by using this 2 point formula which is already there in your 12th standard. x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1 equal to t, है ना. And then automatically all these variables x, y, z, all these 3 variable will be converted into only one single variable, that is t. ये सारा t में कन्वर्ट होगा. ओके, ये सारे रिमार्क्स का कैलकुलेशन आप इमीडिएटली अभी देखने वाले हो. नेक्स्ट केस क्या है? there are some points. Okay, if in above condition, मतलब x1 y1 z1 to x2 y2 z2, in this case specially, if there is a change in only one coordinate, अगर एक ही कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो वेरिएबल आपका चेंज हो रहा है उसको आपको एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है एंड अदर्स बिकम कांस्टेंट. तो फॉर एग्जांपल, इफ आई कंसीडर अ पॉइंट लाइक दिस 1 0 0 2 से 2 0 0, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है देयर इज नो चेंज इन y, देयर इज नो चेंज इन z. Okay, so there is change in only x coordinate. Okay, so therefore in this case your variable is x, and the value of y and the value of z automatically क्या आ जाएंगे? The value of y and value of z both are 0. Okay, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको आने वाले. Then okay, हाँ, अभी एक 5th केस क्या है कि अभी तक के सारे रिजल्ट्स में आपको कर्व का नेचर पता था कि ये स्ट्रेट लाइन है. चलो ये मतलब कुछ केसेस में डायरेक्ट कर्व गिवन थी, या कुछ केसेस में मतलब जो पॉइंट्स आपको गिवन थे वो इस फॉर्म में थे, लाइक ओनली चेंज इन ओनली वन कोऑर्डिनेट इन दैट वे, है ना. तो इन सारे केसेस में एटलीस्ट आपके पास एक आइडिया है कि कर्व का नेचर क्या है ना. बट इफ वी डोंट हैव द नेचर ऑफ द गिवन कर्व, ओके, सो इफ 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व आर नोन बट नेचर ऑफ द कर्व इज नॉट नोन. आपके पास बस 2 पॉइंट्स है, बट उन दोनों पॉइंट्स में से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है या कर्व पास हो रही है, दैट वी डोंट नो, है ना.
तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? सो हियर सिंस वी डोंट नो द नेचर ऑफ द गिवन कर्व, इन दैट केस वी हैव टू चेक वेदर गिवन वेक्टर फील्ड एफ बार इज इरोटेशनल और नॉट. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट. ऐसे क्वेश्चंस आपको आने के चांसेस ज्यादा है, या ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. So in that case, you have to check whether given vector field is irrotational or not. What is the strong benefit of irrotational vector field? Irrotational vector field का मीनिंग ही क्या होता है कि it is independent on path. मैंने आपको उस टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था. Irrotational vector field means what? It is independent on path. Just you have to take the initial point and final point. You will get that corresponding line integral, है ना. So as f bar is if your f bar is irrotational vector field, अगर आप इस केस में चेक करते हो, and if that f bar is irrotational vector field, आपके पास एक रिजल्ट है. If any vector field is irrotational vector field, then there always exists a scalar function phi. उस केस में आप एक स्केलर फंक्शन phi कैलकुलेट कर सकते हो such that f bar is equal to del phi. phi कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है. phi कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ f1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx f2 dy सॉरी फ्री फ्रॉम x एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f3 dz फ्री फ्रॉम x एंड y. ठीक है, ये रिजल्ट्स ऑलरेडी हमने देखे. तो आपको बस फाई कैलकुलेट करना है एंड आफ्टर दैट जस्ट कैलकुलेट फाई एट एंड पॉइंट माइनस फाई एट इनिशियल पॉइंट. दैट गिव्स यू द रिक्वायर्ड वर्क डन और रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल. ओके, तो इस केस में अप्रोच आपका टोटली अलग है जब आपके पास कर्व का नेचर ही नहीं है. उस केस में आपको इरोटेशनल वेक्टर फील्ड का यूज करके वी हैव टू कैलकुलेट दैट लाइन इंटीग्रल और द वर्क डन. ठीक है, आई थिंक ये क्विक रिजल्ट्स है जो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. ओके, बट एग्जाम्पल से वो सारा पार्ट आपका क्लियर होगा. सो अगर आपको एग्जाम्पल में कहीं पे भी कुछ डाउट आ रहा है, ओके, आप मुझे वहीं पे स्टॉप करो. सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. इवैल्यूएट दिस लाइन इंटीग्रल, है ना. कहीं पे उन्होंने बोला है कि वर्क डन के टाइम पे ऑटोमेटिकली यू हैव टू कंसीडर दिस एज अ फोर्स फील्ड. सो इवैल्यूएट, जस्ट लेट मी चेक, एम आई ऑडिबल? Am I audible now? Yes, sir, I'm audible. Okay, so maybe there is a network issue. Yes, okay. Okay, okay, मैं फिर से रिपीट करता हूँ. So this is our example number 1. We have to evaluate this line integral f bar dot dr bar, है ना, for f bar is equal to xy into I bar plus y square into j bar over the straight line. तो path given है, सारी information आपके पास है. over the straight line y equal to 2x, we join the points 0 0 to 1 2, है ना. Okay, so can anyone tell me the what is the, तो आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है. that is a simple thing. Okay, so can anyone tell me what is the value of f bar dot dr bar? इस केस में f bar आपके सामने. can anyone tell me the value of f bar dot dr bar? I want quick answers. बोलो. Anyone can tell me the value of f bar dot dr bar? What is dr bar? Yes, what is dr bar? What is dr bar? Don't put in chat box, just tell me quickly. What is dr bar? से आपको बोलना होगा, अदरवाइज फिर ये लेक्चर्स गूगल मीट पे लेने में भी क्या फायदा. आपको मैंने पहले ही बोला है, समवन हैज टू टेक अ स्टैंड. अदरवाइज मैं फिर प्रॉपर मतलब आई विल कॉल द रैंडम स्टूडेंट्स. देन अगर आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो सो आई विल नॉट कंसिडर योर अटेंडेंस. सी, सो इट्स नॉट अ वन वे टीचिंग. आपको बोलना ही होगा. मैंने आपको कभी ये नहीं बोला कि चलो ये रॉन्ग है, ओके, व्हाई यू आर गिविंग मी रॉन्ग आंसर्स. Okay, I want the wrong answers from your side, then only I will correct you, na. What is value of dr bar? Dx into I bar plus, as we know the value of r bar is x into I bar plus y into j bar plus z into k bar. In a similar way, dr bar is dx into I bar, dy into j bar plus dz into k bar, है ना. f बार आपको पता ही है, f बार इज f1 I बार, f2 j बार, f3 k बार. तो ये आपका f बार है, ये आपका dr बार है. कैन एनीवन टेल मी द वैल्यू ऑफ f बार डॉट dr बार? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f बार डॉट dr बार? यस, आई एम ऑडिबल?
whether I'm audible to everyone? एक्स वाई डी एक्स x y Yes, dx. sir. ओके अभी मैं आपको अब आप नहीं बोल रहे हो ना. ओके आई वांट एवरी टाइम आई वांट डिफरेंट स्टूडेंट हैज टू टॉक, है ना. सो अभी रोल नंबर 47 इज गिविंग मी आंसर. ठीक है, उसके बाद 47 से मुझे आंसर नहीं चाहिए. आई वांट रैंडम स्टूडेंट. आप अगर आप नहीं बोल रहे हो ओके तो आई विल कॉल रैंडम स्टूडेंट्स. ठीक है, और अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो सो आई विल नॉट कंसिडर योर अटेंडेंस. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू फोकस हियर. ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए उसके लिए कर रहा हूँ. अदरवाइज मैं बस लेक्चर कंप्लीट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. मैं रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर कर सकता हूँ. ओके, सो आई वांट सम इंटरेक्शन, तो ही मुझे आपके डाउट समझ में आएंगे, तो ही मुझे कहाँ पे फोकस करना है कहाँ पे नहीं करना है वो पार्ट समझ में आएगा. ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट अ टीचर, यू डोंट नो दिस थिंग्स, बट एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो आप ये करो. ठीक है, रॉन्ग आता तो रॉन्ग आने दो, बट एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई, है ना. जब तक आप नहीं बोलोगे ना तब तक आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा. ठीक है, ओके. हाँ, रोल नंबर 47 प्लीज टेल मी योर आंसर. एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जीरो हाँ हाँ. सो एट द एंड सिंपल लॉजिक क्या है बार डॉट डी आर बार कैलकुलेट करने के लिए. आई बार का कोएफिशिएंट ले लो मल्टीप्लाई विद डी एक्स, वाई बार का कोएफिशिएंट ले लो, सॉरी जे बार का कोएफिशिएंट ले लो मल्टीप्लाई विद डी वाई, के बार का कोएफिशिएंट कंसीडर करो मल्टीप्लाई विद डी जेड. ओके, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है. आप बस कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो ना. या आई बार एक्स वाई है, यहाँ पे आई बार क्या है डी एक्स है, तो एक्स वाई इंटू डी एक्स. यहाँ पे जे बार का कोएफिशिएंट वाई बार है, यहाँ पे जे बार का कोएफिशिएंट डी वाई है, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई. इतना वो सिंपल क्वेश्चन था, बट स्टिल आप नहीं दे रहे हो आंसर उसका. ठीक है, सो दिस इज माई एफ बार and if I consider f bar dot dr bar you will get this. अभी प्रॉब्लम क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस गिवन इंटीग्रल. आगे बस इंटीग्रल सॉल्व करने हो गया क्वेश्चन, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस इंटीग्रल. कैन यू सॉल्व दिस सिंगल इंटीग्रल, कैन यू सॉल्व दिस सिंगल इंटीग्रल. No, sir, it is closed integral. या इट इज अ क्लोज इंटीग्रल. ओके, ये क्लोज का आगे एक रिजल्ट है, अभी आपको इतना उस पर फोकस नहीं करना है. ओके, but at the end it is the integral. At the end you have to treat this as a your regular integration, है ना. It's a regular integration. But problem क्या है इस integration में, you can't integrate a single integral with two variable. That is the problem, है ना. सिंगल इंटीग्रल है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कहीं पे तो एक तो dx चाहिए था या dy चाहिए था या कोई और अदर वेरिएबल dt चाहिए. बट वी कैन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन सिंगल वेरिएबल. बट यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, dx भी आ रहा है dy भी आ रहा है. मीन्स यू कांट सॉल्व दिस इंटीग्रल एज इट इज, है ना. अब एक आपका आंसर होगा कि आप सेपरेट करो एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, विच इज नॉट अलाउड, है ना. बिकॉज ये कोई मतलब ये सब पार्शियल डेरिवेटिव जैसा नहीं है. जब आप x से करते तो y कांस्टेंट, y से करते तो x कांस्टेंट. ऑल दिस बोथ x एंड y आर एक्चुअली वेरिएबल्स. ओके, इन दिस केस तो आपको क्या करना होगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू अ सिंगल वेरिएबल. कुछ तो एक फंक्शन होगा और यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल होगा, एक तो x होगा या एक तो y होगा या कोई और वेरिएबल होगा. ओके, सो हाउ यू कन्वर्ट, नाउ दिस इज माय क्वेश्चन, हाउ यू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू अ सिंगल वेरिएबल. एनीवन, हाउ यू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू अ सिंगल वेरिएबल. वेरी गुड. सिंपल क्या है कि y की वैल्यू आपके पास है इन टर्म्स ऑफ x, तो जहाँ जहाँ पे y दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 2x पुट करो, है ना. या देखता हूँ मैंने यहाँ पे क्या पुट किया. हाँ, y इक्वल टू 2x. जैसे आप y इक्वल टू 2x पुट करते हो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब डिफरेंशिएट करो, dy इक्वल टू 2dx. अभी आप ओके, हाँ ये आपको मैं बाद में बोलता हूँ, पहले आप पुट करके देखो फिर आपको दिखाई देगा. सो x इंटू 2x dx प्लस 2x स्क्वायर, है ना, इंटू 2dx. जहाँ जहाँ पे y था मेरे dy की वैल्यू 2dx, y की वैल्यू 2x. अभी आप अच्छे से देख पाओगे यहाँ पे ये टोटल इंटीग्रल x वेरिएबल में आ गया. x वेरिएबल में आ गया मतलब नाउ यू कैन ट्रीट दिस एज अ योर रेगुलर इंटीग्रल एंड हियर यू हैव टू कंसीडर द लिमिट्स ऑफ x ओनली, है ना. एज वी हैव कन्वर्टेड दिस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल, तो लिमिट्स भी आपके x में आ जाएंगे. तो लिमिट्स कैसे कैलकुलेट किए, यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स है. x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है. मींस x वैरी फ्रॉम 0 टू 1. ठीक है, एंड इफ यू सिंपलीफाई दिस यू विल गेट. ये इंटीग्रल आप डायरेक्टली भी कैल्सी में सॉल्व कर सकते हो. ओके, यू हैव टू ट्राई दिस. एवरीवन नोज दिस ना, हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, या एक्सप्लेन करना है, या आ जाएगा सबको. कैल्सी में भी कैसे सॉल्व करना है. Yes, sir, आ जाए. हाँ हाँ,
प्लीज ट्राई दिस और आप डायरेक्टली यस यस सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग. हाँ गुरु प्रसाद. हाँ कैन यू रिपीट. Sorry, you are not audible. Okay, so just put this integral in calculator just for verification. Okay, sorry, you are not audible. Now, ये इंटीग्रल आप कैलकुलेटर में पुट करके भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है. एंड दैट वैल्यू इज 10/3. बट ये नंबर आपका परफेक्ट आना चाहिए. ओके, सो प्लीज ट्राई दिस एग्जांपल. जिनका ऑलरेडी इंटीग्रेशन वीक है ना, उनको तो कैलकुलेटर पे डिपेंड रहना होगा. दैट इज द ओनली ऑप्शन. ठीक है. नाउ लेट मी टेक द अनदर क्वेश्चन. इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल फॉर दिस f bar ओवर अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो दे हैव मेंशन, ओके, there is a straight line which join the point 0 0 0 2 1 2 3. Okay, so and you have to calculate the line integral. Means what? आपको क्या कैलकुलेट करना है? f bar dot dr bar. Okay, so now can you tell me the value of f bar dot dr bar? f bar dot dr bar की वैल्यू क्या आएगी? I bar का कोएफिशिएंट लेना है x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस j bar का कोएफिशिएंट इंटू डी वाई प्लस k bar का कोएफिशिएंट इंटू डी जेड. ठीक है, दैट बिकम योर f bar dot dr bar. फिर से वही प्रॉब्लम है, सिंगल इंटीग्रल है और यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे हैं. मीन्स यू कांट सॉल्व दिस इंटीग्रल, है ना. आपको तीनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. उसके लिए आपके पास एक ही रिजल्ट है. वी हैव गिवन अ स्ट्रेट लाइन विच जॉइन द पॉइंट 0 0 0 2 1 2 3. सो कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस द पॉइंट 0 0 0 2 1 2 3. व्हाट इज दैट इक्वेशन? ओके, सो हियर यू हैव टू यूज द 2 पॉइंट फॉर्मूला जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. ठीक है. ओके, x माइनस x1 अपॉन, ओके आई विल शो यू इंस्टेड ऑफ दिस. ठीक है, सो दिस इज माय f bar, दिस इज f bar dot dr bar, है ना. सो वी हैव गिवन अ स्ट्रेट लाइन विच जॉइन द पॉइंट 0 0 0 2 1 2 3. ओके, सो वी हैव टू यूज द 2 पॉइंट फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला इज x minus x1. सो दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, दिस इज योर x3, y1 y2 y3. सारे वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ओके, बट मैंने आपको पहले बोला कि इन तीनों वेरिएबल को मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों रेशियोज को इक्वल टू टी लेता हूँ, सो दैट वी कैन कन्वर्ट ऑल दिस 3 वेरिएबल्स x y z इन टर्म्स ऑफ t ओनली, है ना. सो I just consider equal to t, and that implies x minus 0 upon 1 minus 0 equal to t. That gives you x is equal to t. Y minus 0 upon 2 minus 0 equal to t. That gives you y equal to 2t. Z minus 0 upon 3 minus 0 equal to t. That gives you z equal to 3t. अब देखो अभी अच्छे से x की वैल्यू t में, y की वैल्यू t में, z की वैल्यू t में, मतलब टोटल वेरिएबल्स नाउ गेट कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ t. ओके, बट इसमें पुट करने से पहले आपको dx भी चाहिए, dy भी चाहिए, dz भी चाहिए. सो लेट मी कैलकुलेट dx, dy एंड dz. सो dx जस्ट अ डेरिवेटिव, dx इज dt, dy is 2dt, dz is 3dt. हाँ, नाउ कैन यू टेल मी द लिमिट्स ऑफ t? एनीवन? Can you tell me limits of t? अभी इमेजिन करो कि यहाँ पे dx की वैल्यू, dy की वैल्यू, dz की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है. ठीक है, x y z की भी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है. इसका मतलब ये टोटल इंटीग्रल अभी आपका जाएगा इन टर्म्स ऑफ t. ओके, t में जाता तो मुझे लिमिट्स लेने. सो कैन यू टेल मी लिमिट्स ऑफ t? कैन यू टेल मी लिमिट्स ऑफ t? t के लिमिट्स क्या आएंगे? यस yes yes बोलो, what are the limits of t? At least give me hint. मुझे इतना इन डिटेल में भी नहीं चाहिए. How you calculate limits of t? It's not a difficult question. 0 to 1. हाँ, 0 to, okay, 0 to 1. ठीक है, 1. 0 to 1 करेक्ट है. ओके, कितना ट्रिवियल आपको मैं बोलता हूँ. आपके पास x के लिमिट्स है, y के लिमिट है, z के लिमिट्स है. तीनों में से किसी के भी लिमिट्स यूज करो और t के लिमिट कैलकुलेट करो. तीनों केस में सेम ही आने वाले.
आपके पास x के लिमिट्स क्या है, x के लिमिट्स क्या है 0 to 1, आप यहाँ पे चेक करो x वैरी फ्रॉम 0 to 1, y के लिमिट्स क्या है 0 to 2, z के लिमिट्स क्या है 0 to 3, तो तीनों में से किसी के भी लिमिट्स यूज करो। अगर मैं x के यूज करता हूँ, if I put x equal to 0 t is 0, if I put x equal to 1 t is 1, 0 to 1 आ रहा है। मैं अगर y के यूज करता हूँ, if I put y equal to 2, y equal to 2, t की वैल्यू 1 ही आएगी, सॉरी y equal to 0, then t is 0, if y equal to 2, then t is 1, so सेकंड केस में भी 0 to 1 आ रहा है, थर्ड केस में भी 0 to 1 आएगा, so in every case the limits of t are 0 to 1, ये फिक्स होता है। तो इसलिए either x के केस में कैलकुलेट करो या y के केस में करो या z के केस में करो। चलो, so therefore t vary from 0 to 1, now t vary from 0 to 1, x को रिप्लेस करो, y को रिप्लेस करो, z को रिप्लेस करो, dx dy dz को रिप्लेस करो, सिंप्लीफाई करो, कैल्स में पुट करो, you will get that value, that number is 1/3। ठीक है, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यू कैन सॉल्व दिस पार्ट ऑन कैलकुलेटर, बट एटलीस्ट इन एग्जाम यू हैव टू शो दिस मैन्युअली, अगर थ्योरी एग्जाम होती है तो ही। ठीक है, आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो बट एग्जाम में आप मैन्युअली मेंशन करो। ओके, दैट इज द एग्जांपल नंबर 2। नाउ 3, evaluate line integral f bar, okay, over a path joining, suppose this is my a point, a to b, then b to c, and then c to d। Okay, so this line integral over c, okay, this is my f bar dot dr bar, xy into dx, yz into dy, xz into dz। ठीक है, नोटेशन अलग हो जाएंगे इसलिए मैंने जैसे यहाँ पे लिया वही कंसिडर कर रहा हूँ। सो डिनोट द फर्स्ट पॉइंट एज ओरिजिन, डिनोट द सेकंड पॉइंट एज ए, डिनोट दिस थर्ड पॉइंट एज बी, and denote this third fourth point as c। okay, so now what is this line integral over a path joining o to a to b, b to c, like that। okay, क्या होगा आंसर, can anyone tell me what is your integral, what is this value which join the path 0 0 0 2 0 0 1 means oa, 0 0 1 2 0 1 1 means ab, 0 1 1 2 1 1 1 means BC। आपका आंसर क्या होगा, एनीवन? ओके, इन दैट केस योर लाइन इंटीग्रल इज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ 3 पार्ट, है ना। एफ बार डॉट डी आर बार का ही कैलकुलेशन करना है बट ओवर अ पाथ OA, सो दिस इज माय पाथ OA। ओके, बस मैंने सी कर्व की जगह पे OA पाथ लिखा है। सेम इंटीग्रल है, नेक्स्ट पाथ इज व्हाट, A to B, है ना। सो नेक्स्ट पाथ इज A to B and third path is B to C, like this, third path is B to C। so this line integral is divided in now 3 parts। so यहाँ पे basically आपको 3 times ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, that will be final answer। ठीक है, हाँ, तो अभी मुझे आपसे आंसर चाहिए for this first path O to A। okay, how you convert this integral into single variable, बोलो, how you convert this integral into single variable? Yes, from point O to A, it is a path joining point 0 0 0 2 0 0 1। so how you convert this integral into a single integral, anyone? क्या क्या चेंज हो रहा है 0 0 0 पॉइंट से 0 0 1 पॉइंट पे, whether x varies, Z coordinate varies, only z coordinate is vary from 0 to 1। इसका मतलब क्या है कि इस पाथ में x कांस्टेंट है, बिकॉज 0 और यहाँ पे भी 0 चेंज ही नहीं हो रहा है। सो x आपका कांस्टेंट है, y भी आपका कांस्टेंट है, x की वैल्यू भी क्या है 0, y भी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है 0, बट z आपका वैरी हो रहा है विच इज फ्रॉम 0 to 1। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पाथ में x इक्वल टू 0 रख दो। अगर आप x इक्वल टू 0 रखते हो तो dx भी 0 होता है, तो ये टर्म ही 0 होगा, ये नहीं रहेगा वहां पे। y इक्वल टू 0 रखो मतलब dy भी 0 होगा, तो ये भी नहीं रहेगा। एंड नाउ जस्ट कंसिडर xz इनटू dz, ये वेरिएबल है। ठीक है, आई विल शो यू डायरेक्टली। हाँ,
in this method only z coordinate get changes, but put x equal to 0, y equal to 0, that becomes dx 0, dy 0, but limits of z are from 0 to 1, therefore equation 1 become, अभी इसमें भी ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आई थिंक dz के कोएफिशिएंट में भी क्या था, आई विल शो यू, x का टर्म और हाँ यहाँ पे भी x z का टर्म है, अब देखो यहाँ पे x और z आ रहा है, बट x की वैल्यू आपको पता है 0 है, तो x 0 पुट करते तो ये भी टर्म चला जाएगा. ओके, सो दिस पाथ इज 0. ओके, एक वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई. इन अ सिमिलर वे नाउ नेक्स्ट पाथ इज फ्रॉम 0 0 1 to 0 1 1. ओके, कैन यू टेल मी डायरेक्ट आंसर ऑफ दिस, मतलब क्या सिंप्लीफिकेशन आ रहा है यहाँ पे सेकंड पाथ में. x तो कांस्टेंट है ही, x 0 है, यहाँ पे भी 0 है, so there is no change in x, तो x क्या होगा, 0 होगा इस पाथ में. x 0 है मतलब dx क्या होगा, 0 होगा, तो अगर dx 0 है मतलब ये टर्म आने ही नहीं वाला. हाँ, y आपका वैरी हो रहा है, सो हियर y वैरी फ्रॉम 0 to 1, ठीक है. एंड z जो आपका आ रहा है, z इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, z की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो z इज कॉन्स्टेंट, z इक्वल टू 1, सो z इक्वल टू 1, dz क्या आएगा 0 एज z इज कॉन्स्टेंट. ओके, तो dz 0 मतलब ये भी टर्म 0 होगा. ओके, और यहाँ पे yz dy, बट y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू y वेरिएबल है तो y वैसा ही रहेगा, बट z की वैल्यू क्या है, z इज 1 इंटू dy, so just consider y dy and limits of y are from 0 to 1. इसको सॉल्व करो, विल गेट 1 by 2, y स्क्वायर बाय 2 का तो इंटीग्रेशन. ओके, इन अ सिमिलर वे थर्ड का आंसर क्या होगा, नाउ टेल मी दिस लास्ट, या आप बोलो अभी, कैन एनीवन ट्राई दिस. थर्ड केस में 0 1 1 से 1 1 1 पे जाना है, तो x वैरी, हाँ ओनली x इज वैरी 0 to 1 है ना, तो ये dy नहीं रहेगा, dz नहीं रहेगा, x वैरी हो रहा है तो x वैसा रहेगा, और y की वैल्यू क्या है उसमें, y इज 1 है ना, तो x स्क्वायर सॉरी x dx ही आएगा, एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, सो 1 by 2. आई विल शो यू ऑल दैट कैलकुलेशन, इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. फर्स्ट इज 0, सेकंड पाथ में देखो ये वैरी हो रहा है, बाकी सारे कांस्टेंट है, x 0 रहेगा, y 1 z 1 रहेगा, पुट करो, सॉल्व करो, विल गेट 1 by 2. थर्ड इंटीग्रल में ओनली x वैरीज, बाकी केस में y 1 है, z 1 है, ठीक है, बट वैरी नहीं हो रहा है मतलब dy dz 0 ही है, सो ओनली dx का पार्ट रहेगा जिसमें z आपको 1 पुट करना है, सो x स्क्वायर बाय 2 दैट इज 1 by 2. तीनों के एडिशन करो, i1 i2 i3, 0 plus 1 by 2 plus 1 by 2, answer is 1. Okay, so this is the path integral along these 4 points. ठीक है. Now question number 4, find a work done by a force है ना, f bar is equal to x square y cube I bar plus y square z cube j bar plus z square x cube k bar around a circle x square plus y square equal to 1 है ना. Always remember line integral मतलब या work done, लाइन इंटीग्रल और वर्क डन मीन्स सिंगल इंटीग्रल. ओके, ये आप अच्छे से याद रखो, दिस इज ऑल, ये जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो सारा सिंगल इंटीग्रल का कैलकुलेशन है. ओके, वर्क डन और लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन सेम है. वर्क डन बस अगर एफ बार आपका फोर्स है, इन दैट केस दैट इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार बिकम वर्क डन. तो आपको बेसिकली यहाँ पे भी कैलकुलेट क्या करना है, एफ बार डॉट डी आर बार, इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी आर बार है ना. इफ एफ बार इज फोर्स देन दिस लाइन इंटीग्रल बिकम वर्क डन. So what is that, f bar dot dr bar, x square y cube into dx, y square z cube into dy, z square x cube into dz. Okay, आगे now how you convert, अभी ये आपसे ही मुझे चाहिए. now how you convert this into a single variable over a circle. circle region आपके पास given है और आपको इसको सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है. so what is your substitution? yes, over a circle is there, and can you tell me the substitution for this? सर्कल के लिए substitution क्या होता है सिंगल इंटीग्रल में? yes, what is the substitution for circle in single integral? बोलो. x equal to sin t and y equal to x equal to cos t and y equal to sin t. x is equal to cos t and y is equal to sin t. Okay, actually जनरल फॉर्मूला क्या है, x is equal to a cos t, y equal to a sin t, बट रेडियस 1 गिवन है
Okay, so you directly consider x is equal a equal to 1. So substitution is what? X is equal to cos t and y equal to sin t. As it is a circle, है ना, of radius 1, center is 0, है ना. Therefore your substitution is x is equal to 1 cos t, y equal to 1 sin t, and so this is circle is on what? xy plane, है ना. सर्कल x and y है तो ये xy प्लेन पे सर्कल होगा. सो ऑटोमेटिकली आपका z क्या होगा? 0. जो वेरिएबल गिवन नहीं है, मतलब उस पे पॉइंट्स ही नहीं जा रहे हैं ना. सर्कल ऑन xy प्लेन ओनली. सो दिस सर्कल इज ऑन xy प्लेन ओनली. दैट इंप्लाइज योर z इज 0 एज इट इज ऑन xy प्लेन. क्योंकि यहाँ पे थर्ड वेरिएबल भी, दैट्स वाई. एंड नाउ if x is this, dx become minus sin theta d theta, dy become cos theta d theta, dz is 0 as third variable is absent. तो ये टर्म नहीं रहेगा वहाँ पे. इन दोनों का ही कैलकुलेशन करना है. उसमें x की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा, y की वैल्यू आ जाएगी sin थीटा, dx की वैल्यू आ जाएगी sin थीटा d थीटा, dy की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा d थीटा. मैं सारे वैल्यूज पुट करता हूँ एंड एज इट इज अ होल सर्कल, तो थीटा आपको 0 to 2 पाई लेना है. उन्होंने कहीं पे ये नहीं बोला कि हाफ सर्कल कंसिडर करो या पॉजिटिव ऑक्टेंट का सर्कल कंसिडर करो, ऐसा कुछ नहीं है. तो सारे वैल्यूज पुट किए मैंने, ऐसा कुछ दिखाई देगा. इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ऐसा कुछ दिखाई देगा. नाउ ट्राई दिस इंटीग्रल ऑन कैलकुलेटर. सी अगर आप ये चीज़ें कैल्शियम नहीं करते तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला. अदरवाइज यू हैव टू ट्राई दिस फॉर्मूलाज, है ना. बट अभी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये जरूरत है. दिस फ्रॉम रिडक्शन फॉर्मूला, सो इट्स बेटर टू सॉल्व डायरेक्टली दिस ऑन कैलकुलेटर. सो इट इज अप टू यू, है ना. सो ये मैन्युअली सॉल्व किया है मैंने. रिडक्शन में आपको पता है कि 0 to पाई लिमिट है, इवन पावर है तो 4 टाइम्स होता है ना. और फिर रिडक्शन फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. ओके, यहाँ से 1 3 ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने until you get 2 or 1. So 4 minus 1, 4 minus 3, 4 minus 5 नेगेटिव आ जाता है तो वहीं पे स्टॉप करना है. 2 minus 1 वहीं पे स्टॉप करना है. और नीचे इन दोनों के एडिशन 6 माइनस इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. ये आपने देखा है. ओके, बट आई डोंट वांट यू टू go by this way because it takes time. So just put on calculator and solve it. That answer is minus pi by 8. ठीक है. तो इसमें बस फॉर्मूला याद रख के सॉल्व हो जाता है. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं चाहिए. ठीक है. एंड find a work done by a force. Okay, so here I just discuss the method and then we stop. Find a work done by a force which moves the particle from this point to this point. ठीक है, इतना ही गिवन है. वर्क डन कैलकुलेट करना है from one particular point to another particular point. So here whether we know the path, just put your roll number in chat box side by side. So how you solve that example? Can anyone tell me the hint about this question? Please put your roll number in chat box. And can anyone tell me the hint for this question? How to solve this? Here we don't have the path. Path है ही नहीं आपके पास. So how to solve this? Yes? अगर पाथ, अभी तक के सारे क्वेश्चन में आपको पता था ना कि वो स्ट्रेट लाइन है या क्या है. ओके, इस क्वेश्चन में पता ही नहीं वो पाथ कौन सा है. देन हाउ यू सॉल्व दिस? एनी आइडिया? यस? इफ पाथ इज नॉट गिवन, हाउ यू सॉल्व दैट लाइन इंटीग्रल? इफ पाथ इज नॉट गिवन, देन हाउ यू सॉल्व दैट line integral? It shows that you are not checking the previous lecture notes, है ना. और अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तो वैसे भी आपका फाइनल सबमिशन नहीं होगा. ओके, विदाउट ओरल आई विल नॉट लेट यू फ्री. इतना तो आप याद ही रखो. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया और आपको मार्क्स मिल जाएंगे. यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस फॉर्मूलेज. बेसिक चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ. जब तक वो आपसे नहीं होता है, अगर आप नहीं कर रहे हो देन मैं आपसे करवा के भी ले सकता हूँ. ओके, सो हियर यू हैव टू अप्लाई द ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड. ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ. तो जिस भी क्वेश्चन में पाथ नहीं होता है या पाथ इज नॉट गिवन, नेचर ऑफ द कर्व इज नॉट गिवन, इन दैट केस यू हैव टू चेक वेदर दैट वेक्टर फील्ड इज ई रोटेशनल और नॉट. ओके, सो हियर विल स्टॉप टुडे. ओके, एंड यू कैन ज्वाइन नाउ फॉर योर नेक्स्ट lecture. Just put your roll number in chat box and then you can leave this session.